With the name of Allah, the most merciful and the most compassionate. Today, I'm trying to discuss in detail the tense past perfect continuous. Past, American past, simple past, not past, that is pasting के लिए भी हुआ जाता है, American past. So past, perfect, continuous. Remember that past perfect continuous tense indicates the action, the operation, or the working, or any action which took place at a particular point and continued and extended to another point in a continuous position. So simple continuous जो past में होता है वो past continuous tense होता है. इसमें आप ये याद रखें कि वो ये बन गया मेरे ख्याल में 4 सितंबर के 4 तारीख या 4 बजे है 4 PM आप इसको कंसिडर करें और यहाँ आप 2 PM आप कंसिडर करें. ये आपका प्रेजेंट, ये आप प्रेजेंट कंसिडर करें. प्रेजेंट ये पॉइंट आप यहां पर है, आप यहां पर है, यू आर हियर. सो when I entered his room, so he was reading a novel. He was reading a novel. So it is the present, and I am talking here about the past, and in the past a continuous action. But at this point somewhere, but not, that continuity is not indicated in perfect position until you use past perfect continuous. So in both senses, when I entered his room, he was reading a novel. आप इसको स्मॉल कर दें, यहाँ कामा लगा दें क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास पहले आएगा. When I entered his room, जब रूम में मैं दाखिल हुआ तो कंटिन्यूअस एक्शन यहां पर भी था लेकिन सिंपल था. वक्त के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है. सिंपल कि he was in the process of reading a novel, in the process of eating something, in the process of having his dinner, in the process of writing a letter, etc., in the process of watching a television, etc. In perfect continuous, you are here at the present, but when you refer to the past and to the continuous condition of the past, perfect continuous is used in that case. When I entered his room, so he had been the same, reading a novel for 2 hours. दोनों में जब आप एंटर होते हैं तो पास्ट में भी he is in the process of doing something, was in the process of doing something when I entered his room. So to indicate that past in a continuous condition and that past in a perfect continuous condition, so point of initiation या point of inauguration या point of start
must also be indicated and the duration should also be explained. When I entered his room, so he had been reading a novel for 2 hours. So he had, when I entered in the past, here exactly at this point, so it means that he had started and was still in the process of reading that novel. So he had started from here, had been, इसी हालत में वो रहा, had been, इसी हालत में वो रहा, या इस प्रोसेस में पॉइंट में मैं रहा जब मैं एंटर्ड हुआ. ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल. लेकिन व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, सो ही हैड बीन राइटिंग. इसी हालत में वो हैड बीन रहा. हैड बीन मतलब रह चुका होना या किसी खास हालत में से होके गुजरना. तो ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 2 आवर्स. तो 4 पॉइंट पर जब दोनों में मैं उनके साथ मिला 4 PM पर, लेकिन यहां हमारा काम सिर्फ प्रोसेस से है कि ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल. और यहां परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में इससे हमारा ताल्लुक है. व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, तो ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 आवर्स. तो इट मीन्स दैट ही हैड स्टार्टेड एट 2 PM and at that point he was doing the same thing and in a continuous mood at that time he was. And perfect continuous indicates the very start and the very progress or process at this point. So that is the difference. It is rarely used in English, not but only in continuity of tenses. You must remember that like present, perfect continuous and future, which we will have to do in our near future in proper sequence. So it has to do with perfect continuity. So that is why it is continuous. Continuous is equal to imperfect or progressive. So it is continuous, but in the sense that it shows its starting point and it shows its duration in its continuity. So that is why it is called perfect continuous. यानी perfectly imperfect. क्योंकि 2 घंटों से भी अगर वो नावल पढ़ता रहा तो फिर भी वो प्रोसेस में था, कंप्लीशन की तरफ नहीं गया था. लेकिन सिर्फ एक पॉइंट की ये कंटिन्यूटी जो है, एक पॉइंट पे मैंने वॉज रीडिंग द नॉवल ये इंडिकेट करता है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने ये बताया आपको कि मैं जब व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, सो द प्रोसेस वाज दैट he had read that novel for 2 hours and was still in the process of continuing it, taking it forward, and he was engaged in that action. So it is past perfect continuous. So it also has the auxiliary, 2 auxiliaries it has. Remember, being मतलब किसी खास हालत में होना. He is writing, लिख रहा है. He was writing, लिख रहा था. एक खास पॉइंट पर कंटिन्यूस अमल था. लेकिन हैज बीन राइटिंग सिंस और फॉर में जब आप इंडिकेट करते हैं तो उसके साथ ड्यूरेशन का या पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र आप जरूर करते हैं ताकि उसकी कंटिन्यूटी को भी जाहिर किया जा सके कि किस वक्त ये शुरू हुआ और किस वक्त तक ये जारी रहा जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई बात, कोई पॉइंट कोई जाहिर कर रहा हो. तो हैज फर्स्ट ऑक्सिलरी, बीइंग सेकंड. ये पास्ट कंटिन्यूअस का मैं बता चुका हूं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्लूरल के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव बीन. और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यहां लिख दे. इफ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस आईएनजी. ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. और इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इस दोनों की का पास्ट जो है वो हेड है. क्या है? हेड है. जिस तरह की मैंने कहा कि अड या हड, क्योंकि ऑक्सिलरी है, कमजोर है, इमदादी है, मेन वर्ब के साथ ये हेल्पिंग पोजीशन में होता है. तो इसी वजह से मेन वर्ब की तरफ ताकत इसमें प्रोनाउंसिएशन में नहीं होती क्योंकि ये उसके साथ लगाया भी जाता है. खुद आप ये नहीं कह सकते कि आइड डिनर, नॉट एट ऑल. आई हैड डिनर क्योंकि ये मेन वर्ब है. ऑक्सिलरी पोजीशन में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आई हैड रिटन अ लेटर टू माय फादर. इसी ऑक्सिलरी पोजीशन में कंट्रैक्शन भी आप बना सकते हैं. तो इस दोनों का पास्ट है हैड
और कोई फर्क नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और यहां सीक्वेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो हैड दोनों का सिंगुलर और प्लूरल इसकी कोई डिस्टिंक्शन बाकी नहीं रही, क्योंकि दोनों का पास्ट यही है। he had been watching the match for 2 hours. तो had been मतलब was watching, उस प्रोसेस में वो था। when I saw him, और ये saw him जिस तरह के मैं बता चुका हूं कि him ये नहीं होता unless it is stressed। I saw him, ये कनेक्टेड स्पीच में I saw him, I saw them। और होम की ये अलग बात है, अगर होम की भी हिम इसके भी हम तारीख पे जाए तो ये होम है, ये होम है या हिम है इंग्लिश में। और ही मतलब अला हाल ही, इसे छोड़ दे, स्टेटस को एटसेट्रा, इसे अपनी हालत पे छोड़ दे, विदाउट म्यूटेटस या म्यूटेंडी, विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन एटसेट्रा। तो यही होम है जो कि अंग्रेजी में गया है और आराब अजम के पास या आजाम के पास एराब का तस्वर था ही नहीं, तो ये जबर जेर वगैरह का, तो ये हिम बन जाता है, होम भी बन जाता है, होम भी बन जाता है, होम भी बन जाता है। ये जमायर अंग्रेजी के हैं जो सारे इनसे निकले हुए हैं। ये अलग बात है कि अंग्रेज लोग इसको कंसील करते हैं, हाइड करते हैं हमसे। इसी तरह हु, यही आप खुद सोचे कि हु, इसमें आप भी सोचे कि हु, WHO, हु ये भी है, और हु और भी हाउ, हाउ या हाउ, इस पे भी इस्तेमाल होता है। जमायर जो सारे अरबी वाले हैं या हिब्रू लैंग्वेज के हैं, ये सारे अफेक्ट कर चुके हैं अंग्रेजी को। अच्छा, तो हेड बीन, तो ये कंट्रैक्शन भी आप बना सकते हैं यहां पर। he had been watching the match for 2 hours, when I entered him, या when I met him, या when I encountered him, या when I came across him on the way, etc. So he had been, तो आप इसकी कंट्रैक्शन को इसी तरह भी बना सकते हैं। और बीन का अमल ये है कि तसलसल में हो जाए। आई हैड बीन, मैं रह चुका था, इसी अमल में मैं था। हैड बीन, इसी अमल में मैं था, और इसी अमल में जब मैं रहा तो रहने वाली हालत में मेरी वॉचिंग की थी। किस हालत में थी? वॉचिंग की थी। He had been a great scholar. He had been a great scholar. He has been a great scholar, etc. Had been मतलब रह चुका था। तो he was writing, इसी पॉइंट पे था, वो रवा दवा था कंटिन्यूअस, और had been doing something, in the process of doing something, but from a point of time, या for a duration of time, for which you are to use are or is, etc. or has. He had been watching। तो ऑक्सिलरी, चूंकि ये भी ऑक्सिलरी है, ये भी ऑक्सिलरी है, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहला ऑक्सिलरी जो होता है ये आपकी इंट्रोगेटिव हैड, फिर ये नहीं had been, no had he been watching the match for 2 hours, or he hadn't, he'd with space, he'd not been watching the match। या अगर ये कंट्रैक्शन आप छोड़ दे, कंट्रैक्शन को एक को लेना होगा आपको, he hadn't been, he had in apostrophe hadn't been watching the match। और सवालिया इंट्रोगेटिव में हेड आता है, चूंकि ये पहला ऑक्सिलरी है, ये पहला ऑक्सिलरी के बाद नॉट इस्तेमाल होता है, और पहले ऑक्सिलरी फ्रंट को आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये इंट्रोगेटिव टेंस बनाता है। तो ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर, ये है फ्यूचर सिंपल।
फ्यूचर सिंपल, पल ये नहीं होता, सिंपो, सिंपो, पो, सिंपो, क्योंकि इस पे स्ट्रेस नहीं है, ये इस तरह ये प्रोनाउंस किया जाता है कि गोया ये मौजूद ही नहीं। सिंपो, आइपो, एपो, चेयर एटसेट्रा, जिस चीज पे स्ट्रेस आ जाता है उसको वेटेज और वैल्यू दिया जाता है कि ये इसी तरह स्ट्रेस रहे कि कम्युनिकेशन में भी इसकी सारी जो सिलेबिक वैल्यूज है उससे उसकी मफहूम या मफाहिम का अच्छी तरह से इदराक हो जाए। थैंक यू, वस्सलाम, टिल टुमारो व्हेन वी विल बिगिन फर्स्ट टेंस named future simple, a future indefinite tense.